Welcome student of class 9th. Today we will study 2.5. You are most welcome. And here question number second is there. So student, in previous video I have told you about different expressions, formulas and how to utilize. One of them is x plus a x plus b, then we can write x square plus a plus b into x plus a into b. So student, this is the one expression, first formula. You can say we can use this formula in case of product. If products are given, then we can use certainly. So in this first part, where evaluate the following products without multiplying directly. We have multiplied these numbers but without direct multiplication. Then what can we do? We can use identity like x plus a, x plus b is equal to, or x plus x plus b, y whole square, x minus y whole square, etc. There are many identities or many formulas, so we will use here to find these type of products. So student, here in case first we have 103 into 107. So student, here we can divide these numbers into parts like 100 plus 3 and 100 plus 7. So okay students, and here we can write 103 as 100 plus 3, 107 as 100 plus 7. Student, you are thinking that why do we write these? We are writing here to use this identity. How? Suppose 100 is x and this 3 is a, 100 is x and this 7 is b. Then we can use like x square plus a plus b, x plus a into b. Okay students, now x square, sorry student, here remember in place of x square we will put 100 plus a and b. A is 3 plus b is 7 and into x, that is into again 100. Okay student, now a into b means 3 into 7. 3 into 7 or 7 into 3 we can write. Now student, 100 square means 10,000, okay, plus 7 3 is 10, 10 multiplied by 100 plus 21. Now student, 10,000 plus 100 10 1000 plus 21. So finally we will have 10,000 plus 1,000, that's 11,000, 21. So we can write student 11,021. So this is our final answer of this product, but without multiplying directly. Certainly here we have used this identity. So students, similarly you will do other parts. So student, we can take one more part, third, and you will solve the second part. So write down students this solution. Here 10,000 to 1,000 or 21. Okay student, write this. So here student, we have another question which is third part of question number first, 104 into 96. Okay, now we can bifurcate using 100 plus 4 and this can be written as 100 minus 4. This is easy way to solve student. यहाँ पर हमने 104 को 100 plus 4 रखा
और 96 को 100 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स इसको देखते ही आपको एक नई आइडेंटिटी याद आ गई होगी। वो क्या आइडेंटिटी है? वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको याद आ गई होगी। हाउ टू यूज? अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो हम इसको रख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाइस वर्सा, इफ वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, इसको अगर हम a माने, इसको अगर हम b माने, ये a है और ये b है, तो एक प्रकार से क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बी कैन से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 100 स्क्वायर 10,000, ओके, एंड माइनस 16। 10,000 माइनस 16 क्या आंसर आएगा? 9,900 आई थिंक 84। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको यही आंसर मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, so write down this. Students, question number 3 here, factorize the following using appropriate identities. So student, as you have been told that in this exercise mostly we will use different type of identities, so be ready and you should learn all the identities, all the formulas. First, there are 3 parts students here. As part 3rd is concerned, here x square minus y square upon 100. So 100 can also be written as 10 square. So student, I think you are thinking that here in 3rd part we will use formula x square minus y square. Certainly you will do this, but here in first case solution we have 9x square plus 6xy and plus y square. So student, we know the identity that if x square plus 2xy plus y square, then we can write x plus y whole square. Students, this is the one of the property, one of the identity. ये एक प्रकार से फार्मूला है। अगर हम इधर से देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमारे पास ये है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं। इधर का आपका क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये क्या है? इसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। बट बोथ द साइड्स बिलोंग्स टू एन आइडेंटिटी, दोनों साइड आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं। अब आप इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे हम? इसको लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट टर्म स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो 3x होल स्क्वायर रख सकते हैं हम इसको। लास्ट वन इज y होल स्क्वायर प्लस बीच में क्या होता है, जैसे होगा ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए मीन्स 3x एंड b मीन्स y। आप देख लीजिए, दिस इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज नथिंग बट इक्वल टू दिस टर्म, प्रीवियस टर्म। अगर ऐसा है, इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इनमें से जो टर्म स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसको किया, लास्ट में बीच का जो टर्म बचता है मिडिल टर्म, उसको कैसे लिखें? 2 इंटू ए इंटू बी और 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x की जगह 3x है और y की जगह y, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, इट मीन्स वी आर इन राइट पाथ, हमने सही फार्मूला यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x लेंगे, इसमें से प्लस साइन लेंगे, इसको नहीं, और यहाँ से y लेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर, और वी कैन से a प्लस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द आइडेंटिटीज which you can use in very easy way, and certainly you have to try
some more questions from your R.S. Agrawal books and or any other book, but starting should be there. NCERT में कम क्वेश्चन है. अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी लोगों को दूसरी बुक जो आपकी है रेफरेंस बुक, उससे ज़रूर हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस बुक में जो चैप्टर फैक्टराइजेशन है यानी पॉलिनोमियल्स है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन इन फैक्टराइजेशन. आई होप यू विल डू. तो स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस सोल्यूशन. हाँ, तो स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2.5. एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. तो स्टूडेंट, हियर वी हैव many parts, approximately 7-8 parts are there, but here I have written only 4 parts. तो here we have x plus 2y plus 4z whole square. स्टूडेंट, यहाँ पर x plus y 2y plus 4z whole square है. आप देख रहे हैं कि 3 terms are there. In each case there are 3 terms and whole square is there. Before solving these sums, you should know about identity. Here there is identity. Both are same identities. In this first part we use here ABC, and in second part we use x, y, z. Okay, you should aware about that. Both are same. A plus b plus c whole square, a square b square c square plus 2ab plus 2bc plus 2c. x plus y plus z whole square, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. आपको क्या याद रखना है कि जो पहला टर्म है उसको हम या तो a माने या तो x माने, पूरा कंप्लीट. फॉर एग्जांपल जैसे कि इन ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे तो ये a है, ये पूरा b माना जाएगा और ये पूरा c माना जाएगा. या यूँ कहे ये x है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट y है और ये z की जगह है. ऐसे ही इन सेकंड केस इसको आप पूरा तरह से a मान सकते हैं, ये पूरा b है और ये पूरा c है. तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि हम कैसे a b c ले रहे हैं, और जब भी कोई टर्म लेंगे अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये a 2x, b की जगह है -y और c की जगह है z. अब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप जैसे कि ये वाला केस है, यहाँ देखें ये पूरा a की जगह है विद नेगेटिव साइन, ये b की जगह है और ये c की जगह है. बस ऐसे ही आपको एक्सपेंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन, वी हैव x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर. स्टूडेंट हियर ये होल स्क्वायर स्टूडेंट हियर. बस आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी से सोचिएगा कि a की जगह हमें क्या लेना है x, और b की जगह क्या लेना है 2y, c की जगह क्या लेना है आपको 4z. तो एक रफ वर्क साइड में आप कर लीजिए ज़रूर, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. इस केस में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है. अगर यहाँ कहीं माइनस होता, सपोज कीजिए अगर यहाँ माइनस होता ऐसे, तो जो हम c की वैल्यू रखे हैं वो होती -4z. तो इसलिए रिमेंबर एंड गिव अटेंशन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, बट हियर देयर इज नो नेगेटिव साइन. तो दीज आर द नॉट वैल्यूज, दीज आर अप्रॉक्सीमेशन सिंबलिक वैल्यू. अब हम जानते हैं आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है. आइडेंटिटी यहाँ आई लिखिए, यहाँ लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. आप एक दो केस में ऐसे आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं, बट आफ्टर डूइंग वेल प्रैक्टिस यू नीड नॉट टू राइट एनी आइडेंटिटी, यू कैन यूज डायरेक्ट आइडेंटिटी. अब आप देखिए a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे आप यहाँ पे, प्लस c स्क्वायर की जगह 4z होल स्क्वायर प्लस, अब इसी कॉन्टिन्यूशन में आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लस नेक्स्ट है ये 2ab, 2 इंटू ए मीन्स x एंड b मीन्स 2y. यह सब प्रोडक्ट में है तो 2ab हुआ प्लस 2ca 2bc सॉरी bc, तो 2 इंटू b मीन्स y 2y एंड c मीन्स 4z. तो आपने देखा यहाँ के स्टूडेंट ये सब एक कॉन्टिन्यूशन में हुआ. हमने यहाँ तक लिखा 2ab हो गया 2bc एंड लास्ट वन इज 2ca. तो देखिए स्टूडेंट आगे इसी में प्लस 2c, c मीन्स 4z
एंड ए मीन्स एक्स, आपने ऐसे लिख दिया कंप्लीट। एंड कोशिश कीजिए कि ये जो पूरा का पूरा स्टेप है ये एक ही लाइन में आ जाए। अब इसके बाद आप रिक्वायर्ड जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 × 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 × 4xy प्लस 2 × 4 × 16yz प्लस 2 × 4 = 8zx। तो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल एक्सपेंशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट ये आपको काफ़ी सिंपल से लगा होगा। एक चीज़ और कि इसमें कहीं भी हमने यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी माइनस साइन नहीं है, इसलिए वेरी इजी। अब एक अगला क्वेश्चन लेंगे जिसमें किसी न किसी पार्ट में माइनस साइन होगा, तब तक आप इसको नोट करें। आइडेंटिटी के बारे में, आज जो आइडेंटिटी है उसके बारे में हमेशा अवेयर रहिए कि चाहे वो ABC में हो चाहे XYZ में हो, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इन बोथ द वे यू कैन यूज ऑल द आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट डाउन दिस। तो स्टूडेंट्स हियर स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। तो वी विल यूज सेम आइडेंटिटी हियर, बट हाउ? हियर साइड में आप लिख लीजिए कि ए की जगह क्या यूज करेंगे आप, -2x, और बी की जगह क्या यूज करेंगे, 3y, एंड सी की जगह क्या यूज करेंगे, -2z। क्लियर स्टूडेंट? विद यूजिंग विद साइन। अब हम आप देखेंगे आइडेंटिटी आपके सामने है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपका आइडेंटिटी है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे, और इसी के बेसिस पे आप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिटी यू विल एक्सपेंड दिस क्वेश्चन, दिस फैक्टर a स्क्वायर -2x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2z होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये स्टेप लिखेंगे जो कंबाइंड है, 2 × ab प्लस 2 × a मीन्स -2x एंड b मीन्स 3y। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर, प्लस 2bc, तो 2 × b मीन्स 3y, एंड स्टूडेंट c मीन्स c इज हियर -2z इंटू -2z, और इसमें माइनस है साइन, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। एंड लास्ट टर्म इज 2 × ca प्लस 2 × c मीन्स -2z एंड a मीन्स -2x। हियर इट इज क्लियर। तो दिस वे you can write different terms. Now carefully open brackets and multiply here. Always give attention to sign, चिन्हों को ध्यान दीजिए। आप देखिए कि कोई भी नेगेटिव टर्म है जब उसको ओपन करते हैं तो स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4z स्क्वायर। देखा स्टूडेंट आपने कि जहाँ भी स्क्वायर टर्म होगा, स्क्वायर होगा, वो सारे नेगेटिव फैक्टर्स पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ से केयरफुली कीजिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 × 4 3 × 12 xy। आपने देखा स्टूडेंट, 2 × 4 3 × 12 नंबर आया 12, दिस माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन माइनस होगा। देन 2 3 × 6, 6 2 × 12yz। नाउ लास्ट वन इज देयर, यहाँ पे आप देखिए डबल माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 2 × 4 2 × 8, तो 8zx। तो स्टूडेंट दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन ऑफ द फैक्टर एंड आंसर आल्सो। तो स्टूडेंट हियर यू हैव सीन दैट हाउ टू एक्सपेंड factors like this using a plus b plus c whole square identities. And in the previous video you have already been told that there are approximately 10 identities or 10 formula, and you must learn all the formulas or all the identities, and you should use in different ways. These identities are very helpful for you
in mathematics or science in coming classes also. So be aware about that and learn properly and do practice. Students, so I would like to conclude this video, and I have solved first part and third part of the question number 4. Now you will do remaining parts, and there are 6 parts. So you will do question number 4, part 2nd, part 4th, part 5th and part 6. तो these are a type of homework. तो स्टूडेंट आई होप कि आपके सबके समझ में आ गया होगा ये. इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम भेजिए, उसका सलूशन मिलेगा. और वर्क जरूर करते रहिए. इनकमिंग PT1 टेस्ट आपके मैथमेटिक्स में पॉसिबिलिटी है कि 2 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड. सो बी रेडी एंड डू प्रिपेयर. कीप प्रैक्टिस, कीप डूइंग प्रैक्टिस, कंटिन्यू. तो ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 14 में. ओके, टिल देन, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स.